Today we will discuss about distance of closest approach. ਆਪਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਉੱਪਰ ਸਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ठीक है। तो वो जो अल्फा पार्टिकल है किन्नी नेड़े तक न्यूक्लियस ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ +2 E, ठीक है। मतलब अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ 2, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਔਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन दैट इज E और 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2E और मास ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ m। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m ਹੈ, ਚਾਰਜ +2E ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ r0 ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ Z ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ दैट इज इक्वल टू Z। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਆ, ਫॉर ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ number of electron is equal to atomic number। it means number of electrons किधे equal होंगे, that is equal to Z, ठीक। और charge on 1 electron that is equal to E। it means ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ total charge कितना हो गया Z into E। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चार्ज E है और किन्ने इलेक्ट्रॉन्स ने Z, तो कितना हो गया Z इंटू E। जिस भी पॉइंट ते वापस आ रहा ओके डिस्टेंस ले लिया सी r0, इन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहला पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल्स है u वेलोसिटी नाल आ रहे, इट मीनस ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟਸ ਟੂ ਇਟਸ पोटेंशियल एनर्जी, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल दी पोटेंशियल एनर्जी कादे करके हुंदी है, शेप चेंज करके, या तो फिर सेकेंडली की हुंदा हाइट करके। ते की हो रहा दी पोटेंशियल एनर्जी च कन्वर्ट हो रहा, केड़े वाली, इलैक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इलैक्ट्रिक चार्ज होने करके जो पोटेंशियल एनर्जी होएगी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होएगा, ठीक है। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किदे इक्वल आ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इट मीन्स इत्थे कि एक 2E चार्ज है और इत्थे की है Z इंटू E चार्ज है ओवर डिस्टेंस, किन्ने डिस्टेंस तक आ जो अल्फा पार्टिकल है अप्रोच करता पे इस पॉइंट ते और जो न्यूक्लियस है इत्थे दोनों च कितना डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू r0। तो एक आ गई साडी पोटेंशियल एनर्जी, इहनूं असीं सॉल्व कीता, क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z इंटू E स्क्वायर डिवाइड बाय r0। ते साडे कोल इत्थे काइनेटिक एनर्जी की होएगी, किन्नी वेलोसिटी नाल जा रहा है, u वेलोसिटी नाल मास m है, इट मीनस काइनेटिक एनर्जी की होएगी हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन इतने पुट करो, काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखो हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z E स्क्वायर बाय r0, ठीक है। और नेक्स्ट
आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कढ़ रहे हैं, आर नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आर नॉट नू एज अ सब्जेक्ट रख लो कि आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2ZE² डिवाइड बाय 1/2 MU²। ये आ गया साडा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, किन्नी नेड़े तक पार्टिकल नू अप्रोच करेगा। गाइगर मार्शलन ने की किया, अल्फा पार्टिकल्स दी काइनेटिक एनर्जी फिक्स करती, किन्नी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्नी काइनेटिक एनर्जी नाल आ रहा है अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल किदे वाल आ रहा है, गोल्ड फॉयल वाल, टूवर्ड्स गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल का एटॉमिक नंबर कितना गोल्ड का 79, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस रिलेशन तो आर नॉट की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की थी, दैट आर नॉट इज इक्वल टू 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। नैक्सट टॉपिक आप डिस्कस करांगे इंपैक्ट पैरामीटर। सानू ये पता है कि अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस नू अप्रोच करते हैं, सपोज टू बी आ कोई न्यूक्लियस आ, न्यूक्लियस उपर चार्ज कितना Z इंटू ई, Z की है एटॉमिक नंबर और E की है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो असी हुणे देख के हटे हैं कि जिन्ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर देख कर होंगे, सो चार्ज कितना है Z इंटू ई। और जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास कितना है M और चार्ज कितना है +2E। जो अल्फा पार्टिकल है ये यू वेलोसिटी नाल मूव कर रहा, जदों यू वेलोसिटी नाल मूव करदा होया न्यूक्लियस दे कॉन्टैक्ट विच आउंदा है तां की हुंदा, ये किसी ना किसी एंगल उपर डेविएट हो जाता, सपोज इधर चला गया या किसी भी एंगल से आके डेविएट हो जाता, तो ये एंगल हो गया थीटा। एक्चुअल पाथ की सीगा, ये वाला पाथ फॉलो कर सकता सी बट डेविएट हो गया थीटा एंगल उपर। ना कितना ज्यादा ये स्कैटर हो रहा है, ज्यादा एंगल ते जा रहा या थोड़े एंगल ते जा रहा, वो किस से डिपेंड करता है, इंपैक्ट पैरामीटर ते। इंपैक्ट पैरामीटर की है, जो न्यूक्लियस दा सेंटर है उथों जो अल्फा पार्टिकल है दोनों दे विच कितना डिस्टेंस है, दिस वन इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन बी। तो डेफिनेशन की है इम्पैक्ट पैरामीटर दी, इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दिस वन इज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर दा, अल्फा पार्टिकल दा वेलोसिटी वेक्टर है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन्होंने असी की बोलांगे इम्पैक्ट पैरामीटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय बी ऑफ स्कैटरिंग गिवन बाय रदरफोर्ड। इस डायग्राम तो बेसिकली सानू की पता कि जिन्ना ज्यादा अल्फा पार्टिकल दूर होएगा, अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर दे नेड़े अप्रोच करेगा तो सब तो ज्यादा डेविएट होएगा, ठीक है, मीन्स 180 डिग्री ते डेविएट हो रहा, ठीक है, तो ज्यादा डेविएट हो रहा। बट अगर अल्फा पार्टिकल इत्थे अप्रोच कर रहा, इट मीन्स उसका डेविएशन एंगल कुछ इदा होएगा या इदा होएगा, ठीक है। तो इट मीनस उन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन किया लगभग 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री कुछ इदा आ रहा, ठीक है। तो सब तो ज्यादा डेविएट कदों हो रहा, जदों की आ रहा अलोंग दी एक्सिस, मीनस सेंटर वाली लाइन दे अक्रॉस ही आ रहा, मीनस अगर इधर आएगा तो वापस इदा ही वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस दे विच ओहदा एंगल की होएगा 180 डिग्री। स्कैटरिंग एंगल वड्डा आन दे नाल की हो रहा, डिस्टेंस है जो घटी जा रहा, जेकर ज्यादा दूर होएगा तो एंगल घट आएगा। देखो अगर अल्फा पार्टिकल इत्थे अप्रोच करता पिया, डिस्टेंस वध गया ना, डिस्टेंस बी है, डिस्टेंस वड्डा हो गया और एंगल छोटा हो रहा, बट जिवें जिवें डिस्टेंस घटी जाऊगा एंगल वड्डा हो जाऊगा। और यही चीज सानू इत्थों भी समझ आ रही है, देखो 1/4 की एक कॉन्स्टेंट टर्म आ, Z एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर एटम का होएगा वो भी कॉन्स्टेंट आ, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होंगी है, भी फिक्सड है, हाफ MU²। एक बार फिक्स हो गया कि किन्नी वेलोसिटी नाल जा रहा है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नाल ही मूव करेगा। इट मीनस किदे ते डिपेंड करता पिया cot θ/2 ते, बी है वो डिपेंड करता पिया cot θ/2 दे उपर,
ठीक है। अगर cot थीटा बाय 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ cot ਥੀटा ਬਾय 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ cot 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। cot 0 that is equal to infinity, और cot 90 डिग्री कितना ਹੁੰਦਾ, that is 1 by tan 90, tan 90 that is equal to infinity, it means ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਡਾ 0 ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ 0 ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ cot थीटा बाय 2 ਨੂੰ 0 ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ठीक है, इट मीन साडे कोल की है कि जो cot थीटा बाय 2 है इनू 0 होना पएगा। तो cot थीटा बाय 2 0 कदों हुंदा, cot थीटा बाय 2 cot किन्ने एंगल ते 0 हुंदा, cot 0 हुंदा 90 ते। ठीक है, आपां देखिया कि cot 90 की हुंदा 1 by tan 90, tan 90 इनफाइनाइट हुंदा 1 by infinity that is equal to 0। इट मीन्स cot नाल cot कट की रह गया, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपां डायग्राम तो भी यही समझिया सीगा कि अगर जो न्यूक्लियस आ इहदे अलोंग जाएगा, इट मीन्स वापिस सेम एंगल से डेविएट होएगा, डेविएशन 180 डिग्री मैक्सिमम डेविएशन होगी। ठीक है, बट इत्थे असीं की फाइंड आउट कर लिया कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ते इंपैक्ट पैरामीटर की होएगा 0। ठीक है, इट मीन्स की होएगा सेम एक्सिस से जाएगा और वापस आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने की ड्रॉबैक सी, रदरफोर्ड ने क्या सीगा कि एटम दे आले दुआले इलैक्ट्रॉन्स जो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। की बोलिया सीगा कि इलैक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एक्सलरेट करते हैं। अगर वो एक्सलरेट करते होंगे तो इट मीन्स उन्होंने विच एनर्जी लूज होनी सीगी। इनू लोरेंजिस ने क्या सीगा कि अगर कोई पार्टिकल एक्सलरेट करता पे चार्ज पार्टिकल, इट मीन्स उन्हें अपनी एनर्जी नू लूज करना है। ठीक है, तो अगर वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी नू लूज करता है, सपोज टू बी अ न्यूक्लियस Z इंटू ई, इलैक्ट्रॉन इस वाले शैल च घूमता पे, अगर वो एनर्जी लूज करता पे, इट मीन्स नैक्सट टाइम उन्हें की करना, फर्स्ट टाइम आ कंप्लीट शैल कंप्लीट करना सी, जे उन्हें एनर्जी लूज की तो उन्हें अपना सर्कल छोटा कर लिया। ठीक है, इदा मूव करते करते उन्हें की करना, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना, जो कि चीज़ है इम्पॉसिबल है कि इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, क्योंकि इलैक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता पे न्यूक्लियस के आले दुआले कॉन्टीन्यूसली। इदा तो है नहीं कि खत्म हो रहा, अगर न्यूक्लियस गिरेगा तो खत्म हो जाएगा, बट एवं कुछ हो नहीं रहा। सो ये की है ड्रॉबैक्स। सेकेंड ये है कि अगर इलैक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली मूव करता पे और एनर्जी रिलीज करता पिया, देन उन्होंने कोल की होना चाहिए सी कॉन्टीन्यूअस एनर्जी स्पैक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम का जो स्पैक्ट्रम स्टडी किया दैट इज अ लाइन स्पैक्ट्रम, बट हाइड्रोजन एटम गिव्स लाइन स्पैक्ट्रम।